Hello students, today in this video lecture we are going to discuss about formal replies and informal replies. Formal and informal replies क्या होते हैं, इनकी जरूरत कब होती है, इन्हें कैसे लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को कवर करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, formal and informal replies are also a part of invitations. आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इनविटेशंस के बारे में पढ़ा and you already know that invitations are of two types. Formal invitations जिन्हें फॉर्मल लेटर्स के नाम से भी जाना जाता है. These are in printed form. Second one is informal invitations. या you say informal letters. These are just like as personal letters and in handwritten form. Dear students, invitations are of two types. First one is formal invitations and informal invitations. Same as replies are of two types. Formal replies and informal replies. Formal and informal replies दो तरह से लिखे जाते हैं. First one is accepting the invitation. Accepting means स्वीकार करना. Here the receiver pay thanks for the invitation, send his warm wishes and assure the sender that he will definitely attend the function. इसे हम reply for accepting the invitation कहते हैं. Second one is declining the invitation. Declining means refuse, मना करना. Here the receiver pay thanks for the invitation, send his warm wishes, but show his inability to attend the program due to some prior engagement. इसे हम reply for declining the invitation कहते हैं. Dear students, इन्विटेशन एंड रिप्लाई से रिलेटेड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है. इसे 4 तरह से पूछा जा सकता है. ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन 4 मार्क्स. इनफॉर्मल इन्विटेशन से रिलेटेड, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन से रिलेटेड, या फिर डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन से रिलेटेड. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द salient important features of formal replies. Formal replies should be brief and to the point. Formal replies brief होने चाहिए, to the point होने चाहिए. You should mind the word limit. Do not exceed more than 50 words. It must always be pleasant. Formal replies pleasant होने चाहिए, सुहावने होने चाहिए. There is no room means place for unnecessary details or superfluous matter in them. Formal replies में अनावश्यक बातों का यूज नहीं करना. Even while declining means refuse.
even while declining the invitation or expressing inability to attend, one must be polite and courteous. Courteous means respectful. अगर कोई फंक्शन में नहीं जा सकता, नहीं पहुंच सकता, the person show his inability to attend the program, फिर भी उसकी लैंग्वेज फॉर्मल रिप्लाई करते समय उसकी लैंग्वेज काफी विनम्र होनी चाहिए, काफी रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए. फॉर्मल रिप्लाईज डिमांड अ फॉर्मल टोन and treatment as they are replies to or from office, commercial firms or educational institutions. क्योंकि formal replies educational institutions such as school, colleges, offices, कॉमर्शियल फिल्म्स, कंपनीज से जुड़े हुए होते हैं. इसलिए लैंग्वेज जो है, लहजा जो है, वो काफी फॉर्मल होना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल रिप्लाई. लेट्स सी. राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू मिसेस एंड मिस्टर शर्मा accepting the invitation to attend the birthday of their son. You are Mr. Dinesh Rana. Invent other details yourself. Dear students, formal replies में हमें sender's address, date, receiver's address mention नहीं करना होता. हमें briefly to the point लिखना होता है. हमें फॉर्मल टोन का यूज करना होता है. मिसिज एंड मिस्टर दिनेश राणा थैंक मिसिज एंड मिस्टर शर्मा फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द 14th बर्थडे ऑफ देयर सन. डियर स्टूडेंट, ये लाइन ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है. हम क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और नीचे की लाइन हमें इन्वेंट अदर डिटेल्स योरसेल्फ, थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से लिखना होता है. बर्थडे ऑफ देयर सन राहुल ऑन मंडे 6 जुलाई एट अशोका होटल एंड इन्फॉर्म देम दैट दे विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन. They wish the young boy stay blessed and happy. थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है. विशेष कन्वे करने के लिए हमें थर्ड पर्सन का यूज करना होता है. डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का यूज नहीं होता. आपका फॉर्मल रिप्लाई कंप्लीट है, इसको आप बॉक्स में पुट कर देंगे. डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ शॉर्ट एग्जांपल ऑफ डिक्लाइनिंग इनविटेशन रिलेटेड टू फॉर्मल रिप्लाई. इससे पहले हमने एक्सेप्टिंग द इनविटेशन रिलेटेड टू फॉर्मल रिप्लाई किया था. अब हम डिक्लाइनिंग द इनविटेशन रिलेटेड टू फॉर्मल रिप्लाई करेंगे. लेट्स सी. Write a formal reply to Mrs. and Mr. Chawla regretting your inability to attend the wedding ceremony of their son due to a prior engagement. You are Mr. Ajay Malhotra. Invent other details yourself. Regretting your inability means unable to attend the function, declining the invitation. Prior engagement, prior means previous, पहले का, पहले से. engagement already fixed, already planned.
मिस्टर अजय मल्होत्रा का ऑलरेडी पहले से ही कोई प्लान बना हुआ था, इस वजह से वह मिसिज एंड मिस्टर चावला के बेटे की शादी में नहीं जा सकता, इसलिए यहां पर डिक्लाइन इनविटेशन लिखना है। लेट्स सी, मिसिज एंड मिस्टर अजय मल्होत्रा थैंक मिसिज एंड मिस्टर चावला for inviting them on the occasion of the wedding ceremony of their son Abhijit on Monday 6th July at Kanishk Hotel। पहले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स बताया था आपको कि स्टेटमेंट में से ही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं काफी चीजों को, काफी बातों को, और टोन जो है फॉर्मल होनी चाहिए, हमें टू द पॉइंट लिखना है, काफी ब्रीफ लिखना है। थैंक्स पे करने के लिए हमें थर्ड पर्सन का यूज करना होता है। दे, थर्ड पर्सन, दे रिग्रेट मीन्स दुख, अफसोस, खेद। दे रिग्रेट दैट दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू अ प्रायर engagement. This line is already given in the statement. They wish the newly wedded couple a very happy married life. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का फॉर्मल रिप्लाई में यूज नहीं होता, आपका फॉर्मल रिप्लाई से रिलेटेड ये टॉपिक कंप्लीट है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल replies. Informal replies are nothing but personal letters to friends, acquaintances means परिचित and relatives. The tone and treatment of informal replies demands a relaxed and informal style. हमें इनफॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल टोन का यूज करना होता है। वी एड अवर पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस इन इनफॉर्मल रिप्लाईज। यूज वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, हियर दिस इज अ शॉर्ट एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाईज related to accepting the invitation. Let's see. You are Karan Kirti. You have been invited to attend the wedding of your friend's sister during summer vacation. Respond means reply to the invitation, accepting the invitation. आप करण, कीर्ति जो भी हैं, आपको अपने फ्रेंड की तरफ से एक इनविटेशन रिसीव हुआ है। आपके फ्रेंड की सिस्टर की शादी है समर वेकेशन के ड्यूरेशन में, और आपको करण या कीर्ति के बिहाफ पर रिप्लाई करना है। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन का रिप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल रिप्लाई करते समय हमें इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट फॉलो करना होता है। उसी के अकॉर्डिंग वेरी स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर हम 2 या 3 लाइंस में सेंडर एड्रेस पुट करते हैं। ओके, आफ्टर दैट लीविंग ए लाइन, हियर वी पुट द डेट। आफ्टर लीविंग ए लाइन, हियर वी राइट salutation. Leave a line again. This is body of reply. I am indeed thankful to you for inviting me to attend the wedding of your elder sister Sonia. रिप्लाई करने वाला करण या फिर कीर्ति है। करण शुक्रिया अदा करता है कि उसे निमंत्रण भेजा गया, उसे बुलावा भेजा गया, उसे इनवाइट किया गया।
It is an auspicious means पवित्र पावन. It is an auspicious occasion both for me and your family. करण कहता है कि दोनों के लिए, दोनों परिवारों के लिए ये जो है बहुत ही पावन पर्व है. I shall come a day before the wedding day. करण लिखता है कि वो शादी से एक दिन पहले पहुंच जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस ऐड की गई हैं, उनको शामिल किया गया है. यहाँ पे लैंग्वेज टोन जो है वो बहुत ही इनफॉर्मल है. I shall definitely lend a helping hand in making preparation for the marriage. करण लिखता है कि वो शादी में मदद करेगा, हेल्प करेगा. यहां पर स्पेस देने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली. रिप्लाई लिखने वाला कौन है? करण. तो यहां पे हम लिख देंगे करण. एंड आफ्टर दैट पुट इन अ बॉक्स. डियर स्टूडेंट्स, यह तो एक्सेप्टिंग द इनविटेशन है. अगर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे. लेट्स सी. एड्रेस सपोज सेम है. I am indeed thankful to you for inviting me to attend the wedding of your elder sister Sonia. After that, इन लाइंस को हम कट कर देंगे. डिक्लाइनिंग इनविटेशन में सोनिया के बाद हम लिखेंगे unfortunately due to some unavoidable previous engagements, I shall not be able to attend it. Kindly accept a small wedding gift that I am sending for Sonia Didi on this auspicious occasion. Dear students, अगर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन से रिलेटेड आपको रिप्लाई लिखना है तो आपको पहली लाइन सेम है, उसके बाद में ये लाइन हमने स्टफ ऑफ की थी. आपने लिखा अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल प्रीवियस एंगेजमेंट आई शैल नॉट बी एबल टू attend the function. Kindly accept a small wedding gift that I am sending for Sonia Di on this auspicious occasion. ये लाइन लिखने के बाद
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद नेम, फिर इसे हम बॉक्स में पुट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई से रिलेटेड आपका ये टॉपिक कंप्लीट है।